Good morning, students. Today's topic is solubility of a gas in liquid. Any gas can be soluble in liquid. Many factors affects the solubility of a gas in liquid. First factor I am taking nature of gas. Some reacting gases like NH3, HCl, SO2, CO2. These all are gases are reacting gases. Reacting gases. They react with water when they dissolve. When they dissolve in water, they react and form the compounds, different compounds. For example, NH3 reacts with water and form NH4OH. SO2 gas reacts with water and form H2SO4. HCl solid reacts with water. When it is dissolved in water, then it forms HCl liquid. Just like that, CO2 reacts with water and form H2CO3 and form new compound H2CO3 carbonic acid. These are all reacting gases, NH3, SO2, HCl, CO2, and when they dissolve in water, they react with water and form different compounds. So these are all soluble gases because these are polar. Okay, so these are also known as पोलर गैसेस. तो पोलर गैसेस हैं तो ये आसानी से इजीली soluble in water. Easily soluble in water because these are all reacting gases. They react with water and form different compounds. ये सारी gases reacting gases हैं. जब इन्हें water में dissolve किया जाता है तो ये different compounds बनाती हैं. तो reacting gases कैसी gases हैं? Polar gases हैं. तो ये water में easily soluble हो जाती हैं. But when we take the non-polar gases, जैसे हम non-polar gases लें, suppose करो हाइड्रोजन है, H2 है, नियोन है, हीलियम है, दे डू नॉट रिएक्ट विद द वाटर. वाटर से रिएक्ट नहीं करती. दीज आर नॉन रिएक्टिंग गैसेस. नॉन रिएक्टिंग गैसेस. सो दीज आर insoluble in water. Insoluble in water. Correct? Okay. Other example is oxygen gas. When it dissolved in blood easily because it reacts with high hemoglobin present in water. ऑक्सीजन गैस जो है वो वाटर ब्लड में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन से रिएक्ट कर देती है और बना देती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन. दैट्स व्हाई इट इज रिएक्टिंग गैस एंड व्हेन इट इज इजीली कैन बी डिसॉल्व इन ब्लड. Okay, some other factor like absorption coefficient. We see absorption coefficient. Absorption coefficient. Absorption coefficients. If absorption coefficient is high of any gas, then solubility increases. सॉलिबिलिटी इंक्रीजेस. फॉर एग्जांपल अमोनिया का जो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है 7.10 है और हीलियम का एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट 0.009 है. पर वॉल्यूम कितनी गैस डिसॉल्व हो सकती है, ये उसकी कैपेसिटी होती है एक तरह से. एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी या एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट. तो इसका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट हाई है तो इट इज हाईली सॉल्युबल. बट इसका absorption coefficient is very low, so it is insoluble. Okay, तो absorption coefficient भी एक फैक्टर है. रिएक्शन और नॉन रिएक्टिंग गैसेस भी एक अदर फैक्टर है. तो इट डिपेंड्स, solubility of a gas depends on the nature of the gas. It is reacting or non-reacting. It has high absorption coefficient or low absorption coefficient. Okay. Now second factor I am taking nature of solvent. Nature of solvent. Polar gas is dissolved in polar solvents
For example, HCl is a polar gas. HCl gas is a polar gas and it can be dissolved in water easily, but it is insoluble in benzene. In benzene it cannot be soluble. बेंजीन में ये सॉल्युबल नहीं है, वाटर में सॉल्युबल है क्योंकि ये एक पोलर गैस है और वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, जबकि while benzene is a non-polar solvent. Okay, so it is not soluble in benzene, but it can be soluble in water. So polar gas can be soluble in polar solvent, but it cannot be soluble in non-polar solvent. Okay, now third factor is effect of temperature. टेम्परेचर का इफेक्ट देखें तो इफ जो सॉल्युबिलिटी, इफ एनी गैस इज सॉल्युबल इन लिक्विड, यदि लिक्विड में सॉल्युबल है तो इट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. किसी भी गैस का वाटर में सॉल्युबल होना एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन दिखाता है. एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा H नेगेटिव होती है एंड ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर देन अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल the equilibrium will go towards backward direction and solubility will get decreased. किसी भी गैस को व्हेन एनी गैस इज डिजॉल्व इन वाटर में डिजॉल्व होती है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, एनर्जी रिलीज होती है और एनर्जी रिलीज होगी तो टेम्परेचर बढ़ाने पर अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल जो इक्विलिब्रियम है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा और बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होने से गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी. करेक्ट. लेकिन इसका सेकंड फैक्टर भी है, इसका सेकंड रीजन भी है कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ये सिंपल रीजन है कि व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इंक्रीजेस, सो मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस विल गेट एस्केप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड. Maximum amount of gaseous molecules will get escape from the surface of the liquid. लिक्विड की सरफेस से मैक्सिमम गैसियस मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं बाहर, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? इट मीन्स सॉल्युबिलिटी of gas in liquid decreases on increasing the temperature because their kinetic energy increase. Okay, next fourth factor is effect of pressure. We will continue it. Fourth factor is effect of pressure. It is called Henry law. Henry law भी कहते हैं and it is very important from point of view of board. बहुत important point है, ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. फर्स्ट वी विल ड्रॉ टू सिस्टम्स. ओके, फॉर एग्जाम्पल पिस्टन, यहाँ पर एक पिस्टन अप्लाई कर देते हैं इस पर प्रेशर इंक्रीज करने के लिए. ठीक है, देयर आर टू सरफेसेस, वन लिक्विड सरफेस, लोअर सरफेस इज लिक्विड सरफेस and upper layer is gaseous surface या gaseous layer. ओके, यहाँ पर मैं लिक्विड बना देती हूँ और यहाँ पे gaseous molecules. ओके, when you increase the pressure, suppose we increase the pressure on the piston, only W1 was there, but here we increase the pressure, so W1 and W2 प्रेशर इंक्रीज कर दिया. ठीक है, तो प्रेशर इंक्रीज करने से
दिस पिस्टन विल मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे आ जाएगा ये पिस्टन मूव करके, यहाँ पर प्रेशर डालेंगे तो प्रेशर डालने से होगा क्या कि लेयर तो दो ही रहेंगी सेपरेट लेयर, लेकिन जो गैसियस मॉलिक्यूल्स थे, नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स विच वर स्ट्राइकिंग ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड विल बी मैक्सिमम इन अमाउंट। जो सरफेस पर स्ट्राइक हो रहे थे, पहले टकरा रहे थे सरफेस पर, लिक्विड की सरफेस से, वो पहले कम मॉलिक्यूल्स टकरा रहे थे, लेकिन अब सरफेस पर, लिक्विड की सरफेस पर ज़्यादा मॉलिक्यूल्स टकराएंगे और जो एंटर करेंगे सेकेंड लेयर में गैसियस मॉलिक्यूल्स वो ज़्यादा हो जाएंगे। सपोज करो यहाँ पे 3 थे तो यहाँ पर डबल हो जाएंगे, यानी कि 6 मॉलिक्यूल्स विल प्रेजेंट हेयर। सो इफ़ यू इंक्रीज द प्रेशर, इफ यू इंक्रीज द प्रेशर, जब आप प्रेशर इंक्रीज करते हो, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस व्हेन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय m, यदि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस रिप्रेजेंट की जाती है स्मॉल m से, तो इट विल गेट इंक्रीज्ड, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। दिस इज द हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ स्टेट्स दैट कि एट एनी फिक्स्ड टेम्परेचर और प्रेशर अमाउंट ऑफ सॉल्युबल gas will be directly proportional to its pressure, m proportional to p, okay, and if we replace the m by x, यदि हम solubility के प्लेस पर हम इसमें मोल फ्रैक्शन की बात करें कि कितने गैस का कितना मोल फ्रैक्शन इसके अंदर सॉल्युबल हुआ था, तो इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय टर्म x, सो p proportional to x, और if we remove the proportional sign, p is equal to kh into x. kh is a Henry constant, it is a Henry constant. So therefore according to Henry, mole fraction of gas in the solution is proportional to the partial pressure of the gas over the solution. Mole fraction of the gas in the solution is proportional to the partial pressure of the gas over the solution. X proportional to P, P proportional to X, P is equal to KH into X. So Henry has given a quantitative relationship between pressure एंड मोल फ्रैक्शन। तो हेनरी ने प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में, गैस के प्रेशर और गैस के मोल फ्रैक्शन के बीच में क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दी। उसने कहा कि एज यू इंक्रीज द प्रेशर, द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस डिजॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन इंक्रीजेस। जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते हो, गैस का जो मोल फ्रैक्शन जो कि सॉल्यूशन में डिजॉल्व है, उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो इट हैज गिवन अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन P and X, pressure of the gas and mole fraction of the gas, or the solubility of the gas. We can say that solubility of the gas is increased on increasing the pressure of the gas on the surface of liquid. Okay, this is the Henry law. Now एक क्वेश्चन करते हैं हम इस पे, एक न्यूमेरिकल करते हैं। तो न्यूमेरिकल के लिए IT का न्यूमेरिकल, suppose this is a question, H2S is a toxic gas
ठीक है। विद रोटन गैस, रोटन एग लाइक स्मेल इज यूज्ड इफ सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन वाटर एट एसटीपी इज दिस। इसके लिए सॉल्यूशन के लिए ये आपका इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 2.6 है, करेक्ट। इसको करते हैं हम। तो सबसे पहले फॉर्मूला, वी राइट द फॉर्मूला P इजिकल टू, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, KH इंटू एक्स। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज अवर फॉर्मूला। उसने पूछा है हेनरी कांस्टेंट निकालना है, यानी कि KH निकालना है। तो KH इजिकल टू हो गया P अपॉन एक्स। गैस कौन सी ले रखी है, वी आर टेकिंग द H2S गैस। तो प्रेशर किसका लेना है हमें, H2S गैस का, और मोल फ्रैक्शन भी हमें किसका निकालना है, H2S गैस का। तो यहाँ पर P H2S गैस यदि ATM की टर्म में ले रहे हो तो इट विल बी इक्वल टू 1 ATM, और यदि बार की टर्म में ले रहे हो तो 0.789 बार होता है STP पर प्रेशर, ये फिक्स है। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, सिर्फ x H2S, और x H2S का फॉर्मूला क्या होता है, n H2S अपॉन n H2S प्लस, किस में डिजोल्व है, वाटर में डिजोल्व है ना, ये वाटर में डिजोल्व है। तो n नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O। अब नंबर ऑफ मोल ऑफ H2S कितने दे रखे हैं, 0.195 दे रखे हैं मोलल, ये 0.195 मोलल दे रखा है। तो ये भी हमें कैलकुलेट है, इसका मतलब सिर्फ हमें NH2O कैलकुलेट करना है। तो NH2O कैलकुलेट कैसे करेंगे, 1 लीटर इजिकल टू 1000 ml और 1000 ml इजिकल टू 1000 ग्राम। और इसका मॉलिकुलर वेट कितना होता है WH2O का, देखो NH2O जो होता है उसका मॉलिकुलर वेट होता है 18। तो 18 में डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 55.5 मोल, करेक्ट, 55.5 मोल। अब यहाँ पर इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे इस जगह पर। ये मैंने कैसे निकाला है, इसका फॉर्मूला होता है एक n इजिकल टू NH2O का निकाल रहे हैं ना हम, तो WH2O अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ H2O। तो WH2O गिवन था 1000 ग्राम था, और मॉलिकुलर वेट H2O का कितना होता है 18, तो इट विल बी इक्वल टू 55.5। तो इसे हम यहाँ पर रख देंगे NH2O को, तो x H2S निकल जाएगा। x H2S इज इक्वल टू 0.195 अपॉन 0.195 प्लस 55.5। इसको आप सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्सीमेट आंसर आ जाएगा 0.0035। इस 0.0035 को आप यहाँ पर x H2S में स्टार्टिंग में रख दो फॉर्मूले में, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो मैं करके दिखा रही हूँ कि KH इजिकल टू यहाँ पर PH2S यदि हम बार में रख रहे हैं तो 0.789 अपॉन 0.0035, ये 0.0035 को यहाँ पर रख दिया SH2 प्लस में। तो ये हम सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट आंसर आ जाएगा 282 बार, ये आंसर आ जाएगा हमारा। इस तरह से एक क्वेश्चन कर लिए जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे।